Hi everyone, welcome to you all in my another video. So one very common question I always receive that from pharmacy students. So is there is any chance to migrate to Australia without having any experience? Or you are just a fresher, or whether you are working in your other field. For example, you are working as a MR, pharmacovigilance, or pharmaceutical industry, or medical writer, pharmacovigilance. I mean any other field. If you are working apart from your community pharmacist or retail pharmacy or as a hospital pharmacist. So if you do not have the experience as a hospital pharmacist or retail pharmacist, and you have other experience from other field, or you just graduate B Pharm, you did your PharmD. So is there any possibility to migrate to Australia? Can we get a visa on without experience? So yes, so there is a good news basically. So there is no need to have any experience, and zero experience you can migrate to Australia on a PR visa. So there is some visa, as I told you, you need to apply. So one of my students, basically Athar, is from India, Hyderabad, and he's living in Australia and he's on a student visa. So he do not have any experience. He have just the zero experience. He cleared the CAPS exam and apply for 491 visa, and he got the invitation from the two states. One is the Western Australia. He also got from the Victoria. So this is the good news. As I told you, there is no need to have any experience. So 491 visa and 190. These are two visa called basically a state sponsorship. Basically, they will give you. So the state will sponsor you the visa. So if you want to apply for 491 visa, so they will give you the 15 points. So you have like 55, 50, even 60, 65, whatever points you have. Additionally, 15 points add in your point, and you will get the invitation. So right now in Western Australia, they are giving a visa on a very lowest point. Given basically, if you are overseas, you will get a visa on 65 points. This is the latest round. I'm talking about in 22 October, and this other got basically invitation on a 70 points. So he do not have experience, but he got a 70 point because of the age. His age is below 32, so he got 30 points from that, and 15 points he got from the education. Apart from this, he is a single, so he got 10 points, and he studied in Australia. He got 5 points for that. So anyhow, basically he got a 70 point invitation, and so this is basically a very good news. So अगर आपको PR visa, if you want to apply for free PR visa 491 and 190 visa, there is no need to have any experience. So if you have 3-year experience, they will give you 5 points for working point. But if you do not have experience, then these 5 points you cannot claim. So the point little bit reduced as compared to those have some experience. But some people have experience, so their age is like more than 33. So they will get 25 from points from age, and 5 points they will get from the experience. So they can make 30 points. But if you do not have experience and your age is 33 and below, so you will get a maximum point. So basically in Australia, the visa system based on the point. तो अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, स्टिल you can get a visa 491 and 190. Another visa also, there is no need to have any experience. This is called 407. This is a training visa. तो जो 3 वीज़ा हैं, इसको आपको एक्सपीरियंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है. विदाउट एक्सपीरियंस आपको ये वीज़ा मिलेगा. एक तो जो है 491, इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एक होता है 190, इसमें भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. मैं बता रहा हूँ आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एंड राइट नाउ इज द विक्टोरिया एंड द कैनबरा. तो यहाँ पर अभी ओपनिंग है. यहाँ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो. अगर आपने पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, जैसे इनिशियल स्किल असेसमेंट किया आपने, फिर आपने कैप्स एग्ज़ाम किया, फिर आपने अपना इंग्लिश का जो टेस्ट है आपने वो भी आपने जो है पास कर लिया, तो फिर ये जो है थोड़ा सा आपको वॉइस थोड़ा सा अभी बीच में हो गई होगा कि यहाँ पर पास में हमारे एयरपोर्ट है, तो बहुत सारे जो है प्लेन यहाँ जाते रहते हैं, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होती रहती है. और मैं घर के बाहर बैठ के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. तो मैंने बताया कि आपको
कि 491, 190, 407 इन 3 वीज़ा के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। 407 वीज़ा में क्या होता है, ये ट्रेनिंग वीज़ा होता है और इस वीज़ा के लिए आपको एक जॉब स्पॉन्सरशिप चाहिए। मगर 491 वीज़ा या 190 वीज़ा के लिए कोई भी स्पॉन्सरशिप आपको नहीं चाहिए। मगर अगर आपके हाई पॉइंट्स हैं तो आप जाइए 190 पर। अगर आपके करीब 75 और प्लस पॉइंट्स 80-85 पॉइंट्स हैं तो फिर आप जाइए 190 पे। अगर आपके थोड़ा सा लो पॉइंट्स है तो आप 491 पे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा वीज़ा है रीजनल एरिया के लिए। और जो जॉब्स जो होती है फार्मासिस्ट की, वो सारी की सारी जॉब जो है रीजनल एरिया में है। और एक एडवांटेज ये भी है कि आप रीजनल एरिया में आपको बहुत ज़्यादा आप सेविंग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ही कम एक्सपेंसेस में आप रह सकते हो। जैसे कि अगर आपको सिडनी में आप आते हो तो आपको जो है $1500 से लेकर $2000 पर मंथ का आपको जो है घर में रेंट का ही देना पड़ जाएगा। और अगर आप यही अगर रीजनल एरिया में जाओगे तो वहाँ पर आपको 1000 के आसपास में आपको ये मिल जाएगा। तो यानी कि आप $1000 सिर्फ रेंट में ही आप सेव कर रहे हो। बाकी जो फ्रूट्स होते हैं, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती हैं, क्योंकि वहीं पर जो प्रोड्यूस की जाती हैं। तो ये वीज़ा बहुत ही अच्छा है। तो 491, 190 एंड 407 कोई वीज़ा को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यस, अब बता दी कि एक्सपीरियंस भाई किसको चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी आपको वीज़ा मिलेगा, वरना आपको वीज़ा नहीं मिलेगा ना। तो मैंने जो प्रूफ आपको बताया ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का प्रूफ है। यहाँ पर 65 पॉइंट पे ओवरसीज़ कैंडिडेट को जो है वीज़ा दिया गया है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को भी और रिटेल फार्मासिस्ट को भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप खुद से जाके चेक कर सकते हैं। अब जो है एक वीज़ा होता है 482, ये होता है वर्क वीज़ा। तो वर्क वीज़ा बेसिकली उन्हीं लोगों को मिलता है जैसे कि यहाँ पर लोगों की ज़रूरत है, स्कार्सिटी है, लोग नहीं है यहाँ पर, तो कंपनी बाहर से लोगों को बुला सकती है तो वर्क वीज़ा पे। तो इस वीज़ा में डेफिनेटली आपके पास 2 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो, तो फिर आप ये 482 वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एक आता है 494, ये होता है रीजनल एरिया में वर्किंग वीज़ा, इसमें भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि वर्क वीज़ा पे आप आइए, डायरेक्टली आप अपने PR वीज़ा पे आइए, अपनी फैमिली को लेकर आ सकते हैं आप। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं परमानेंट वीज़ा पे आप होने के बाद। आपको बच्चों को एजुकेशन फ्री होती है, हेल्थ के यहाँ पर फ्री होता है, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं यहाँ रहने के, है ना। और अगर आप PR पे नहीं, आप वर्क वीज़ा पे हैं, तो आप अपने स्टूडेंट, आप फॉर एग्जाम्पल आपके 2 बच्चे हैं, आपके 3 बच्चे हैं आपके, देन यू हैव टू पे देयर स्कूल फ़ी, एंड फी इज़ नॉट वेरी लो, इट्स लाइक maybe 12 to 13,000 AUD you need to pay, you know। तो हम बेसिकली पूरा प्रोसेस को आपको कंप्लीट कराते हैं। तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे। हाँ, तो हम आपका स्किल असेसमेंट, आपका जो है कैप्स एग्जाम प्रिपरेशन, प्लस आपकी जो है PT प्रिपरेशन हम करवाएंगे आपको, ताकि आप इजीली ऑस्ट्रेलिया मार्केटिंग कर सकें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ लीव ए कमेंट बिलो, एंड मैं भी एक वीज़ा पे सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा डिटेल्ड में, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ भी क्वेश्चन तो आप लीव ए कमेंट बिलो, आई विल रिप्लाई, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।